students, how are you all? I hope you all are good and happy. So, today we are going to begin with the lesson number 10, that is artificial intelligence. That is the most common word in today's world. So, let's begin with this lesson. So, here in this chapter, we are going to study the history of artificial intelligence. Then, we are going to talk about milestones in the field of artificial intelligence. Now, what are the stages of artificial intelligence? Then, how we can work on artificial intelligence and what is the working of artificial intelligence? Then, we are going to talk about the applications of artificial intelligence like ChatGPT, Gemini. So then we are going to talk about importance of artificial intelligence, then what are the limitations of artificial intelligence, what are the ethics of artificial intelligence, and in the end we are going to talk about the risks of artificial intelligence. So here AI, what do you mean by AI? AI is the science and engineering of making intelligent machines. AI क्या होती है? एक साइंस है और इंजीनियरिंग है क्या बनाने के लिए? इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए. So here, the term artificial intelligence was first coined by Stanford researcher. Who has coined this? He was the Stanford researcher whose name was John McCarthy in 1956. So in plain and simple words, the ability of a machine to think and learn is called artificial intelligence. क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक एबिलिटी होती है एक मशीन की थिंक करने की और लर्न करने के लिए, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स. इसमें इस फील्ड में क्या होता है? रिसर्च होती है, स्टडी होती है प्रिंसिपल्स की, कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजी की फॉर बिल्डिंग सच अ मशीन्स एंड सिस्टम दैट शुड थिंक, एक्ट एंड लर्न लाइक ह्यूमन. क्या बनाने के लिए इनको लर्न किया जाता है कॉन्सेप्ट को मशीन्स के लिए, जिससे वो एक्ट कर पाए ह्यूमंस की तरह. सो मशीन पोजेसिंग artificial intelligence should be able to interact with the environment and perceive it through various stimuli such as visual perspection, speech recognition कि वो आपके स्पीच को भी रिकॉग्नाइज कर पाए, विजुअली भी देख पाए, लैंग्वेज को भी कॉम्प्रीहेंड कर पाए, मतलब इजिली अपनी लैंग्वेज में कर समझ पाए इन द फॉर्म ऑफ रिसीव डेटा. जो उन्हें हम डेटा उन्हें इनपुट कर रहे हैं एंड रिस्पॉन्ड टू देम बेस्ड ऑन गैदर्ड इंटेलिजेंस, जो भी आ सके उस पर गैदर्ड इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंगली. Now, here, history of artificial intelligence. What is the history of artificial intelligence? In 1951, a machine called Serenity Mark 1, एक machine थी क्या? Serenity Mark 1 is use an algorithm to master a strategy board game called checkers. उन्होंने एक algorithm use करी master करने के strategy board game के, जिसे हम क्या कहते हैं? Checkers का हमने. After the success of this machine, researchers Newell, जो रिसर्चर थे हमारे नेवल एंड साइमन, डेवलप्ड अ जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम. उन्होंने एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम डेवलप कर दिया 1959 में टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. क्या सॉल्व करने के लिए? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इन 1956 अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो क्या थे? 1956 में एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था? जॉन मैककर्थी. उन्होंने कॉइन करा एक टर्म आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. विकास किन्होंने दिया था? हमारे जॉन मैककर्थी ने दिया था 1956 में. सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ एआई. जॉन मैककर्थी को भी कहते हैं, को ही कहते हैं अपने फादर, उसके एआई के फादर. ही आल्सो डेवलप लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन्होंने एक लैंग्वेज भी डेवलप करी, दैट इज लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज LISP, दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ एआई. Now, milestones in field of artificial intelligence. क्या क्या milestones थे? 1950 में क्या हुआ था? 1950 में आपका कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग प्रपोज अ टेस्ट फॉर मशीन लैंग्वेज. उन्होंने एक टेस्ट प्रपोज करा किसमें? मशीन लैंग्वेज के लिए. 1964 में एक चैटबॉट नेम आया. A chatbot named Eliza is created at MIT Artificial Intelligence Laboratory. ये कहाँ पे बना था? MIT Artificial Intelligence Laboratory में बना था 1964 में. 2002 में डेब्यू करा रूम्बा, एन ऑटोनोमस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर. जो खुद का एक ऑटोनोमस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर था.
2018 में अनाउंस हुआ गूगल डिप्लेक्स, a technology that allows AI assistants to work appointments on phone to book। ये एक गूगल डिप्लेक्स था जिसने क्या किया था, टेक्नोलॉजी थी ये जो अलाउ करी थी AI असिस्टेंट को बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट्स फोन पे ही। देन 1956 में इससे पहले भी क्या हुआ था, 64 से पहले भी हुआ था, 1950 के बाद the term artificial intelligence was first coined by computer scientist जॉन मैककार्थी 1956। and 1989 में भी क्या हुआ था, CI Penrose that use of neural networks to control the autonomous vehicle। 2018 से पहले 2017 में क्या हुआ, गूगल AlphaGo beats Go, 2000-year-old बोर्ड गेम, इन्होंने बोर्ड क्या कर दिया था, बीट कर दिया था गो को, जो आपका क्या था 2000 साल पुराना ओल्ड बोर्ड गेम था। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टेजेस क्या क्या है। स्टेज 1, सो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है ये। स्टेज 1 है आपका आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI is the first stage of AI। ये फर्स्ट स्टेज आपके AI का, it has a narrow scope and work only in single functional area। इसको बहुत नैरो स्कोप है और सिंगल फंक्शनल एरिया में ही ये सिर्फ वर्क करता है। स्टेज 2, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, that is AGI is the next stage of AI। सेकेंड स्टेज था AI का, the machines at the stage are as capable as human। इस स्टेज पर मशीन ह्यूमंस की तरह कैपेबल है। These machines can independently apply intelligence। ये जो machines है independently apply कर सकते हैं इंटेलिजेंस को सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल फील्ड्स। स्टेज 3 में क्या हुआ, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI machines would be the ones that can surpass the average intelligence level of humans। ये क्या थी, ये वो थी जो सरपास कर पाती थी एवरेज इंटेलिजेंस लेवल आपके ह्यूमंस की तरह। नाउ वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कैसे वर्क करती है AI आपकी। फॉर अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट शुड एबल टू लर्न, प्रिडिक्ट, इसको लर्न करना आना चाहिए, प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, जस्टिफाई करना आना चाहिए, एंड एक्ट बेस्ड ऑन एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस वुड रिक्वायर द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज, इसमें कुछ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, लाइक natural language processing, that is NLP। So natural language processing is a technology used by the computers to understand the natural speech of humans during an interaction। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे AI आपकी कंप्यूटर्स आपकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, जो आप प्रोसेस कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, स्पीच जो होती है ह्यूमंस की, उसको एकदम उससे इंटरेक्ट कर पाएंगे, इंटरेक्शन के ड्यूरेशन में उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ह्यूमन स्पीच कैन बी हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि आपकी स्पीच एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी बोल सकते हो आप, एम्बिजियस एंड नॉट प्रिसाइज, आपकी प्रिसाइज भी नहीं होती, कई बार कुछ लोगों को सही से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, बट दे ट्राई टू स्पीक, सो इट इज सो हार्ड टू अंडरस्टैंड ना। सो NLP uses algorithm to identify and extract the natural language। ये algorithms यूज करती थी आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज रूल्स को, टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इस फॉर्म में कन्वर्ट करती थी जिससे वो कंप्यूटर उसको समझ पाए। नाउ मशीन लर्निंग, सो मशीन लर्निंग इज अ कैटेगरी विद इन AI दैट कन्फर्स मशीन, ये कैटेगरी है AI के अंदर जो कन्फर करती है मशीन को लर्निंग एबिलिटी के साथ। दिस रिक्वायर्स अ मशीन टू लर्न एंड इम्प्रूव इटसेल्फ। ये रिक्वायर, इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है मशीन को लर्न करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए खुद से फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस। देयर आर एल्गोरिथम दैट मेक इट पॉसिबल टू फोकस ऑन एनालाइजिंग, ये एक एल्गोरिथम है जो उसको पॉसिबल करती है फोकस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करती है, प्रेडिक्शंस करते हैं। डिटेक्शन ऑफ स्पैम मेल, से डिटेक्ट भी करते हैं जो आपके स्पैम मेल्स होते हैं, एंड कैटेगराइज करते हैं उसको मेल्स को इनटू डिफरेंट फोल्डर इन एन एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। इट इज आल्सो यूज्ड इन यूट्यूब इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सजेशन। यूट्यूब पे भी यूज होती है वीडियो सजेशन के फॉर्म में, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वीडियोस आ यूजर वॉचिंग, जिस टाइप आपने देखा होगा ना, आप जिस टाइप की वीडियोस वॉच करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस आपके पास आने लगते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ AI। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप लर्निंग। So deep learning is a specialized form of machine learning। ये specialized form है एक machine learning की। इसको क्या चाहिए होता है, mimicking human neural networks in order to make sense of the knowledge। It is a key technology running behind driverless cars। ये key technology है जो run करती है किसके पीछे, जो driverless cars होती हैं। Like deep learning can predict things based on timelines। उन पे predict करती है चीज़ें जो
टाइमलाइंस पे बेस्ड होती है एंड स्टोर करती है डेटा को, लाइक योर हार्डवेयर ब्रेकडाउन्स, health scares, customer footfall, etc. Deep learning is achieved by a method called deep neural network. ये किस तरह अचीव कर सकते हैं आप? डीप न्यूरल जो आपका मेथड है, डीप न्यूरल नेटवर्क, उसके थ्रू अचीव कर सकते हैं. दिस टेक्निक मिमिक्स द एक्चुअल नेचुरल नेटवर्क ऑफ ब्रेन. ये जो टेक्निक है क्या करती है? मिमिक करती है एक्चुअल नेचुरल नेटवर्क ब्रेन की तरह. Several layers of neural networks work in harmony to produce a single outcome. बहुत सारे लेवल लेयर्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क के, वो एक साथ वर्क करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल आउटकम को. दे वर्क बाय यूजिंग अ सेट ऑफ एल्गोरिथम. वर्क करते हैं क्या यूज करके? सेट ऑफ एल्गोरिथम्स को यूज करके जो डिजाइन की जाती है रिकॉग्नाइज करने में पैटर्न्स को. सब एग्जांपल्स इंक्लूड डिटेक्टिंग फेसेस. कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक डिटेक्टिंग फेस हो गया, इमेजेस हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, आइडेंटिफाइंग एक्सप्रेशंस एंड रिकॉग्नाइजिंग स्पीकर्स बाय टोन ऑफ वॉइस. और रिकॉग्नाइज करते हैं स्पीकर को किसके थ्रू? टोन ऑफ वॉइस के थ्रू. Now, what are the applications? क्या applications हैं हमारी artificial intelligence की? So, first one is automated customer support. So, AI enables assistant offers answering of simple queries. आपने देखा होगा Google आपको कई बार असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जो आपके सिंपल क्वेरीज को आंसर कर देता है, डायरेक्ट करता है कस्टमर्स को टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन. जो भी डिस्क्रिप्शन गिवन है उसके थ्रू वहाँ तक रीडायरेक्ट कर देता है कस्टमर को. सेकेंड इज ऑनलाइन शॉपिंग. AI assistants are used to send reminders. Yes, reminders send करने के लिए AI assistants use होते हैं, ऑफर करने के लिए instant answer and having a more personal approach towards queries of customer. कि more personal की एक AI assistants use कर किए जाते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बेसिकली पर्सनल अप्रोच करने के लिए क्वेरीज को, कस्टमर्स की जो क्वेरीज होती है उनके लिए. नाउ हेल्थ केयर. AI हेल्प्स इन एनालाइजिंग सैंपल्स. ये एनालाइज करने में हेल्प करता है आपके सैंपल्स को एंड इम्प्रूव करने में एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस, दो thus reducing the cost and time of diagnosis. Now futuristic vehicles. So AI based drones भी होते हैं, futuristic cars भी होती है, relying on किस पर रिलाई करता है? ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिलाई करता है. आर ऑलरेडी इन डेवलपिंग स्टेज. ये भी आजकल डेवलपिंग स्टेज में है. AI हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द शिपमेंट कॉस्ट. यस, AI रिड्यूस करती है, हेल्प करती है रिड्यूस करने में शिपमेंट कॉस्ट को. नाउ ट्रैवल. AI रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एफिशिएंट रूट्स. ये रिस्पॉन्सिबल है, यस, आपको एफिशिएंट रूट्स बताते हैं जो बेस्ड होते हैं रियल टाइम सिचुएशन पे कि इस टाइम यहाँ पे ट्रैफिक है तो आपको ये रूट सॉर्ट पड़ेगा कि आपको आपने देखा वो गूगल मैप पे ट्रैफिक शो करता है, रेड लाइन शो करती है. दैट मीन्स इफ यू will go from there, you will suffer from traffic. AI chatbots AI chatbots can recommend travel places. Yes, AI chatbot जो होता है आपको ट्रैवल प्लेसेस भी रिकमेंड कर देता है, हेल्प करता है बुक करने में टिकट्स को बहुत एक अफोर्डेबल रेट पे. ना सोशल मीडिया. AI पावर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शो अस फीड्स, टाइमलाइंस. या हमें क्या शो करता है? फीड शो करता है, टाइमलाइन शो करता है, हमारे पास नोटिफिकेशन भी भेजता है, रिमाइंडर्स भी भेजता है, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजंस को. स्मार्ट होम डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट यूज AI. ये वो डिवाइसेस है जो यूज करता है AI को लर्न करने के लिए, बिहेवियर एंड एडजस्ट करने में अकॉर्डिंग टू देम. दे आर कंट्रोल्ड थ्रू वॉइस कमांड. किसके थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं? वॉइस कमांड्स के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं और स्मार्टफोन्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल स्मार्ट लाइट दैट चेंज कलर अकॉर्डिंग टू द टाइम. स्मार्ट लाइट होती है जो किसके अकॉर्डिंग टाइम कलर चेंज करती है? टाइम के अकॉर्डिंग. रोबोटिक्स. AI पावर्ड रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग. ये किसके लिए कैपेबल होती है? रीजनिंग के कैपेबल होती है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स to a limited extent as well as performing action based on them. Now fully automated cars भी होती हैं. Right now fully automated cars are in extensive research. ये बहुत ज़्यादा extensive research में and development phase में भी है. The main concern is the ability of the car to avoid getting into accidents. की main concern क्या है कि ability होनी चाहिए इस कार की कि वो उसमें एक्सीडेंट्स ही ना हो पाए, since it will take a while for it to be highly efficient. Yes, AI based cars with power with proper implementation can bring drastic change. AI cars आ जाएंगे तो बहुत drastic change आ जाएगा हमारे नेचर में, इन हाउ पीपल ट्रैवल, और लोग कैसे ट्रैवल करेंगे उसमें भी एक drastic change आ जाएगा. Now using AI in military. हम AI को military में यूज कर सकते हैं. The use of robots and artificial intelligence in military has been questioned since robots cannot be given autonomous power. हम robots को autonomous powers नहीं दे सकते when lives of people are concerned, क्योंकि they will work according to their intelligence, they will work practically, they will not be emotional at that time because they are practical.
So, however, AI has also opened possibilities of conducting military operations. Yes, AI को possibilities दी जाए military operation conduct करने के लिए with much reduced risk and greater support to soldiers, thereby increasing their efficiency in tasks such as rescue work. Rescue work में इनको use कर सकते हैं. Now, importance of artificial intelligence की क्या importance artificial intelligence की? Some of the uses of artificial intelligence are artificial intelligence required for automating and optimizing processes. किस लिए required होती है? Automate करने के लिए, optimize करने के लिए resources, processes को. It helps in building insight. ये किसमें help करता है? Build करने में, insights को assess करने में, better decision making के लिए. It could help to identify possible faults. ये help करती है identify करने में कि यहाँ ये possible faults हो सकते हैं. Artificial intelligence enhances the value of a product. ये enhance करती है value एक product की, जैसे आपका Google Assistant enhance करता है experience of Android users. AI uses self learning algorithm. ये self learning algorithms को use करते हैं जो हेल्प करता है स्टडी करने में, ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करता है, आउटकम्स की, इसका आउटकम क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल एन एल्गोरिथम दैट स्टडीज द ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, जो क्या एक ऐसी एल्गोरिथम जो क्या करती है, स्टडी करती है आपके ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर को, जो एक कंज्यूमर का होता है, रिकमेंड करती है सिमिलर चीज़ें और रिलेटेड प्रोडक्ट्स. आपने देखा होगा, आपने कुछ सर्च किया, उससे रिलेटेड आपके सामने चीज़ें आने लगती है. दैट इज बिकॉज ऑफ AI. Now, the accuracy that can be achieved with AI is unmatched. Accuracy and receive कर सकते हैं, हम AI से मैच कर सकते हैं, वो unmatched है. So, advanced AI techniques are being used to find diseases like cancer. आजकल advanced AI techniques use हो रही है find करने के लिए जो diseases है, like जैसे cancer हो गई, by looking at MRIs, by looking at MRI इसको research कर रहे हैं आजकल. Now, limitations क्या क्या है आपकी artificial intelligence की? What are the limitations of artificial intelligence? That is, first one is insufficient availability of data. So, data is important for any AI machine to constantly learn and develop. सबसे ज़्यादा important है data किसी भी AI machine को constantly learn करने के लिए and develop करने के लिए. Many organizations that want to take on AI projects do not have sufficient data. जो भी organizations लाना चाहती है अपने AI प्रोजेक्ट्स को, बट उनके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है और एनफ यूजफुल डेटा नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं AI मशीन्स में. डेटा कलेक्शन बायस, many AIs are trained with using data that sometimes lends itself to biasness. Yes, बहुत सारी AI मशीन सिस्टम से ट्रेन किए जाते हैं ऐसे जो बायस्ड होते हैं. एंड AI सिस्टम कैन ओनली बी गुड. ये सिर्फ जब ही गुड हो सकता है द डेटा दैट हैज बीन प्रोग्राम्ड इनटू इट. When the data program is biased, अगर डेटा प्रोग्राम बायस्ड होगा तो सिस्टम इज ट्रेन अकॉर्डिंग टू दैट, उसी के अकॉर्डिंग तो सिस्टम को ट्रेन किया जाएगा. एज ह्यूमंस कैन टेक इनकरेक्ट डिसीजन, जैसे ह्यूमंस इनकरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन बायस्ड थॉट्स और अप्रोच. इन द सेम वे एन AI सिस्टम कैन ऑल्सो टेक अ रॉन्ग डिसीजन. जैसे ह्यूमन बायस्ड डिसीजन ले सकता है, सिमिलरली AI भी एक बायस्ड डिसीजन ले सकता है. नाउ एथिकल लिमिटेशंस. The reluctance of human letting machines take over the task that they are accustomed to do results in ethical limitations, as like AI might not be able to implement decision. Implement decision नहीं ले सकता AI जो जिस पर based होता है ethical versatility of human has. Now, lack of emotional intelligence. Yes, AI के पास emotional intelligence नहीं होता. They are only practical. NLP has been shown to be effective in building emotional intelligence, but it is still far away. ये अभी बहुत दूर है from being close to exhibit the same emotional intelligence as human. NLP ने work करा है effective emotional intelligence लाने के लिए, but अभी वो बहुत दूर है, वो human की तरह emotional intelligence नहीं ला सकती. Now, ethics of artificial intelligence. क्या क्या ethics होता है artificial intelligence के? So, the ethics of artificial intelligence specifically apply to machines. किस पर अप्लाई करता है? मशीन्स पर अप्लाई करता है, जैसे आपके रोबोट्स हो गए. दैट आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, जो क्या है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है. द वे ह्यूमन डिजाइन कंस्ट्रक्ट यूज एंड ट्रीट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीनरी इज कॉल्ड रोबोटिक्स. उसे हम रोबो एथिक्स कहते हैं वो ना. This takes into account about the scenarios. ये scenarios को अपने ध्यान में रखता है where an AI machine could be harmful or beneficial to humans. कि AI machine आपकी harmful भी हो सकती है, beneficial भी हो सकते हैं humans के लिए. Now, on measure towards the robot ethics is a proposal of open source AI. किसका proposal है? Open source AI का proposal है, but this makes AI development opaque. ये opaque बना देता है AI development को, transparent
It is also argued that open source AI could be more damaging than beneficial. ये भी आउट सोर्स किया गया है. ये भी बात हुई है कि जो आपकी ओपन सोर्स एआई होगी वो भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती है बेनिफिशियल से ज़्यादा. Machine ethics is a research field that works for designing robots. Machine learning क्या आपकी रिसर्च फील्ड है जो किस लिए यूज़ होती है, वर्क करती है डिज़ाइन करने के लिए रोबोट्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स को with rules of principles of moral conduct. In 1950s, Isaac Asimov proposed, इन्होंने क्या प्रपोज किया था, एक लॉ प्रपोज किया था रोबोटिक्स का जो गवर्न करता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को. बट आफ्टर एन एक्सटेंसिव रिसर्च ही कंक्लूड करा था दैट नो बाउंड्रीज कैन बी सेट, कि कोई बाउंड्रीज सेट नहीं हो सकती दैट कैन सफिशिएंटली anticipate all the situations. Amazon, Google, Facebook, IBM and Microsoft are the organizations. ये वो organization है जो वर्क करते हैं एक साथ in a non-profit partnership to study the platform of artificial intelligence and formulate practices. Here, risk of artificial intelligence कि क्या risk होता है artificial intelligence का. Some of the risks involved in artificial intelligence are well-believed risk of AI is that someday machine would become a so intelligent. एक सबसे बड़ा ये है कि machine इतनी intelligent बन जाएगी that they might be able to outsmart humans and establish their own functions and control, कि वो humans को भी पीछे छोड़ देगी और खुद की हर चीज़ अपनी मनमानी करने लगेगी, एस्टेब्लिश कर देगी अपने खुद के फंक्शंस एंड कंट्रोल्स. इफ एआई सरपासेस एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस, एआई सरपास कर जाएगी एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस को, देन इट कुड पॉज a threat as controlling. ये पॉसेस हो गया कंट्रोलिंग की तरह. It could become a challenge. For example, if a machine becomes super intelligent, अगर एक मशीन इतनी इंटेलिजेंट बन जाएगी, सुपर इंटेलिजेंट बन जाएगी, it will also become resistant to shut down. Yes, development of AI projects without any regulations also become a major problem. जो development हो रही है AI projects की किसी regulations के बिना, ये भी एक major problem है. AI can work autonomously, अपने आप वर्क कर सकता है, and result can be non-predictable. रिजल्ट इसका सोच भी नहीं सकते. AI could also work in a way where no one could be held responsible legally, since there are no written regulations as of now. अब तक AI की कोई written regulations नहीं आई. That is very harmful for our system. That's all for this lesson. I hope you have understood the many things about the AI. So AI can be harmful too if not used with the regulations. So that's all. Thank you for today. I hope you have liked the class. Thank you and have a nice day.